MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshek and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshek, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। मार्केट हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर, पाक फौज को खराज तहसीन। यौम तशक्कुर पर मुल्क भर में दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से हुआ। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक आर्मी की चाको चौबंद दस्ते ने नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ नारे लगाए। फौजी जवानों ने पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआएं की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर ने अहम मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाक भारत जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। उन्होंने पाक भारत जंग बंदी में कलीदी किरदार पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। शाहीनों ने दुश्मन के 5 नहीं 6 जहाज गिराए, मोदी क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म पाक फ़ज़ाए के शाहीनों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत की जारहियत के खिलाफ शानदार फतह हासिल करने पर मुसल्लह अफ़वाज को मुबारकबाद पेश करते हैं। भारत का जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, अब अमन की बात करो। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ग्रीन गॉन्ग स्पोक तकरीर में वीडियो लिंक से खिताब करते हुए कहा कि आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर बुलंद हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि वाशिंगटन और लंदन में सरमायाकारों से मुलाकातें हुई।
امریکا اور UAE کا مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کے لیے اہم معاہدہ. صدر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ دوستی مزید بڑھے گی اور مضبوط ہوگی. انہوں نے UAE کے $1.4 ٹریلین کی سرمایہ کاری کے دعوے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم اس پر پورا اترنے کے لیے سخت محنت کریں گے. ٹرمپ کا قطر میں امریکی فوجیوں کے سامنے رقص ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. امریکی صدر نے قطر میں واقع العیدہ ایئر بیس بھی گئے اور وہاں تعینات امریکی فوجیوں سے خطاب بھی کیا. اس موقع پر ٹرمپ کی صدارتی مہم کے دوران مقبول ہونے والا پارٹی نغمہ چلایا گیا جس پر کچھ لمحوں کے لیے امریکی صدر نے اپنا روایتی رقص بھی کیا. ملک کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں. میرخان میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا. پشاور، بہاولپور، نواب شاہ میں 44، لاہور میں 43 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد 42، راولپنڈی 41، کوئٹہ 38 اور کراچی میں 37 ڈگری رہا. ہیٹ ویو کا سلسلہ 20 مئی تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی. درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے. طبی ماہرین نے شہریوں کو شدید گرمیوں میں بغیر ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کر دی. ملک کے دیگر شہروں کی طرح رحیم خان میں بھی یوم تشکر بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوئی. ایڈمنسٹریٹر عرفان انور نے ضلعی افسران کے ہمراہ پرچم کشائی کی اور پاکستان کی سلامتی، تعمیر و ترقی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی. جیکب آباد میں کرسچن برادری کی جانب سے پاک فوج کی حمایت میں ریلی کی قیادت کرسچن برادری کے رہنما برونر بی نیوٹن کر رہے تھے. ریلی نجی اسکول سے پریس کلب تک نکالی گئی. ریلی میں کرسچن برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ریلی کے شرکاء پاک فوج کی حمایت میں فلک شگاف نعرے بازی کرتے رہے. حیدرآباد میں ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم تشکر بڑے دھوم دھام سے منایا گیا. پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. سرکٹ ہاؤس میں پاک فوج کی حمایت میں ریلی بھی نکالی گئی. سرکٹ ہاؤس میں مرکزی تقریب کا انعقاد. MNA طارق علی شاہ جاموٹ، میئر حیدرآباد کاشف شورو، کمشنر حیدرآباد بلال احمد میمن، DIG حیدرآباد طارق رزاق دھاریجو، DC زین العابدین میمن، SSP عدیل چاندیو، ADC 1 گدا حسین سومرو سمیت مختلف محکموں کے افسران، سیاسی سماجی رہنما، شہری اسکول کے طلباء و طالبات نے شرکت کی. ہیڈ لائنز آپ نے جانے. بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر. پاک فوج کو خراج تحسین. یوم تشکر پر ملک بھر میں دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے ہوا. وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی. پاک آرمی کے چاقو چوبند دستے کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے. فوجی جوانوں نے پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی دعائیں کی. مزار قائد پر یوم تشکر کے حوالے سے وقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے مزار قائد پر حاضری دی. بابا قوم کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے. دوسری جانب لاہور میں مزار اقبال پر یوم تشکر کے حوالے سے وقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے مزار اقبال پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی. مولانا عبدالخبیر آزاد نے دعا کرائی. ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق کے حوالے سے یوم تشکر کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر آفس میں پروقار پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں پریڈ کا انعقاد بھی کیا گیا. تقریب کی صدارت ڈپٹی کمشنر جہلم اسم عباس نے کی جبکہ DSP سٹی میاں جبار، سابق رکن صوبائی اسمبلی چودھری ندیم خادم، سیاسی رہنما ڈاکٹر فضل الحق، ADCR ثانیہ صفی، ADCG صبا سحر، اسسٹنٹ کمشنر جہلم شمس الرحمان، دیگر ضلعی افسران، شہریوں، اساتذہ، طلباء اور مختلف شعبائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی. جیسا کہ آج جانتے ہیں آپ کہ پورے ملک میں آج یوم تشکر جو ہے منایا جا رہا ہے. اصل میں آج کا یہ دن تسبیح و تحلیل کا دن ہے. آج کا دن یہ شکرانے کا دن ہے. آج کا دن یہ ارض پاک کی ان ماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے ایسے سپوتوں کو جنم دیا جنہوں نے ارض پاک کی سلامتی، خود مختاری اور بقا کی خاطر اپنی بیش بہا
जानों के नजराने पेश करके शहादत के रुतबे हासिल किए। जी, आज मुल्क भर में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। आज के दिन के मनाने का मकसद हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो दिन रात मेहनत करके अपनी जानों पे खेल के हमें अल्लाह की मदद से फ़तह दिलाई है, उस हवाले से उनके साथ इज़हार यकजहती और उनका शुक्रिया अदा करना है। जी बिल्कुल, आज जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक पाक अफवाज की शानदार फतह पर पूरे जेहलम में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने दफातर में परचम कुशाई की है। उसके बाद अभी सेंट्रल हमारी डीसी साहब की सरबराही में एक परचम कुशाई हुई है और इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपनी भरपूर शिरकत की है। जेहलम से शाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जेहलम में भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट जेहलम के स्कूलों में भी यौम तशक्कुर की तकरीबात मुनाकिद की गई। गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल में यौम तशक्कुर की मेन तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें परचम कुशाई की गई। डीओ एजुकेशन सेकेंडरी मोहम्मद शहजाद ने परचम कुशाई की। इस मौके पर सहूल के तमाम टीचर्स भी मौजूद थे। प्रिंसिपल गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल चौधरी अरशद महमूद ने MM5 से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा के हदायत के मुताबिक हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं। सुबह असम्बली में हमारे स्कूल के तमाम बच्चे मौजूद थे, तो DO सेकेंडरी शहजाद साहब भी तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने बच्चों से ख़िताब किया था और इस मौके पर पाकिस्तान के अफवाज के लिए दुआए खैर भी की गई थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के VN के मुताबिक पंजाब भर के स्कूलों के बच्चों के दरमियान इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जेहलम में भी स्कूल के बच्चों के इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं जेहलम से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल में मौजूद हैं। उनके साथ स्कूल के प्रिंसिपल चौधरी अरशद महमूद गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन के बारे में क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जी मुस्तफ़ा भट्ट। जी बिल्कुल, मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल जेहलम में। तो यहाँ पे आज स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी बच्चों के इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब मौजूद। आइए इनसे जानते हैं इन्होंने जो इलेक्शन करवाए हैं, पिछले साल जो इलेक्शन हुए थे उसके क्या नताइज निकले हैं और इस साल भी जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं ये कैसे जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपने फरमाया कि ये दूसरी दफ़ा इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमारा तो तजर्बा पिछले साल का बहुत अच्छा रहा है और हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने बच्चों को इन सरगर्मियों में शामिल होने का मौका दिया है। इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा खुद एतमादी आई है, क़यादत का जज्बा सामने उभर के आया है और बच्चों में कायदाना सलीताँ बढ़ी हैं। इसके अलावा बच्चे जो पिछले साल इलेक्शन हुआ है उसमें हमारा तजर्बा बहुत ही अच्छा रहा है। बच्चे स्कूल की सरगर्मियों में बहुत एक्टिव रहे हैं और स्कूल के अंदर जो भी थोड़े बहुत मसाइल थे उनसे भी हमें आगाह करता रहे हैं और हम भी बच्चों से जो उनके पास का काम था वो लेते रहे हैं और स्कूल का माहौल पहले की निस्बत बेहतर हुआ है और ये एक पॉजिटिव इक़दाम है गवर्नमेंट का। जी बिल्कुल, आपने हेडमास्टर साहब की बात सुनी कि उनका कहना है कि पिछले साल जो इलेक्शन करवाए गए थे उसके बहुत ही अच्छे नताइज निकले हैं। बच्चों के जो मसाइल थे वो हम तक पहुँचे हैं। बच्चों में खुद मुल्क के दीगर शहरों की तरह जेहलम में भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के सिलसिले में तकरीबात मुनाकिद की गई, रैलियाँ निकाली गई। पहली तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्ज़ाज़ार में मुनाकिद की गई, जिसमें परचम कुशाई की गई और पंजाब पुलिस के चाको चौमद दस्ते ने सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर ने की। रैली प्रेस क्लब पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। दूसरी रैली CO हेल्थ डॉक्टर मियाँ मजहर हयात की क़यादत में हेल्थ ऑफिस से निकाली गई, जो वाई क्रॉस पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। इसी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात बाबर इमरान ने रैली की क़यादत की। इसी तरह मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर शहीद की यादगार पर डिप्टी कमिश्नर जेहलम इज़ाम अब्बास ने फूलों की चादर चढ़ाई और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की।
डिप्टी कमिश्नर जहलम मोहम्मद मेसम अब्बास की हिदायत के मुताबिक दीगर सरकारी इमारतों की तरह स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करना और उन्हें खराज तहसीन पेश करना था। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ, जिसके बाद CEO एजुकेशन जिला जहलम मैडम नाजिया शहजादी ने महकमे तालीम के आला अफसरान और उसातिज़ा के हमरा परचम कुशाई की। शुरका ने कौमी परचम को सलामी पेश की और वतनी अजीज की सलामती, तरक्की और अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मोहम्मद शहजाद ने उसातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद के हमरा परचम कुशाई की। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए मिली नगमे पेश किए और वतन से मोहब्बत के इजहार में तकरीर की। तकरीब के अख्ताम पर इस अज़म का यादा किया गया कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ी है और वतन की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। खबर शामिल करते हैं कामों की से, जहां पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कामों की 16 मई यौम तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर माहम वाहिद ने की और रेस्क्यू 1112 के दस्ते ने सलामी दी। पंजाब पुलिस भी उनके हमरा थी। इसके बाद रैली भी निकाली गई और पाकिस्तान की जीत की खुशी में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर माहिम वाहिद ने हमारे नुमाइंदे मियाँ ज़ीशान से खुसूसी गुफ्तगू की है। जी ज़ीशान, बताइएगा क्या कहना था उनका। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कामों की भी में यौम तशक्कुर मनाया गया है। जिस तरह इंडिया को इतनी भारी शिकस्त दी है हमारे अफवाज पाकिस्तान में, उसी के जो है सिलसिले में कामों की में यौम तशक्कुर 16 मई जो है वो मनाया जा रहा है और इसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर माहम वाहिद जो कर रही हैं। आइए उनसे पूछते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम अपनी पाक फ़ौज की वजह से और हमारी हुकूमत पाकिस्तान की मेटिकुलस प्लानिंग की वजह से हमें हमारे 2 कौमी नज़रिए का उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, हमें उसका पता चला। किस तरह से उन्होंने दिलेरी के साथ, प्रिसिशन के साथ, मेटिकुलस किस्म की प्लानिंग के साथ उन्होंने जिस तरह से इंडियन फोर्सेस का मुकाबला किया, मेरे ख्याल में आज हम लोग जिस तरह से खुली फ़ज़ा के अंदर सांस ले रहे हैं, हम जिस तरह से रातों की नींद उस वक्त भी सुकून से सोते रहे हैं, अगर वो लोग ना होते तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और उससे भी ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ हमारी मीडिया की टीम का, MC, रेवेन्यू, स्कूल एजुकेशन, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और मेरे वो तमाम भाई हमारे सिविल डिफेंस वाले, हमारी पीस कमेटी वाले, सारे वो, और सॉरी अगर मैं किसी का नाम लेना भी भूल चुकी हूँ। जी, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर माहम वाहिद का कहना यह है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रही है, उसके हवाले से हम जो है अपने घरों में आराम की नींद सो सकते। अहमदपुर सियाल से खबर शामिल करेंगे। यौम तशक्कुर पर पाक फौज से इज़हार यकजहती रैली दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तहसील इंतजामिया, सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान हरपल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, अहमदपुर सियाल यौम तशक्कुर के मौके पर म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा की जानब से पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए एक खसूसी रैली और परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल मोहम्मद वकास जफर, लीगी रहनुमा अमीर अब्बास खान सियाल और अवामी खिदमत पार्टी के तहसील सदर फौजी मोहम्मद रमज़ान खान बलोच ने शिरकत की। शिरका ने वतन अजीज़ की सलामती, तरक्की और इस्तेकाम के लिए खसूसी दुआएं की और पाक फौज के हक में पुरजोश नारे भी लगाए। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अफवाज पाकिस्तान से अपने वालाना अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर मुकर्रीन ने हालिया दिफाई कामयाबी बुनियान मरसूस का भी जिक्र करते हुए इस कौम के लिए फ़ख्र का बैस करार दिया। उनका कहना था कि बुनियान मरसूस जैसी दिफाई हिकमत अमलियों ने पाकिस्तान के दुश्मनों को मौसर पैगाम दिया है। कौम और फौज एक पेज पर हैं और किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यौम तशक्कुर की तकरीब का मकसद पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करना है और कौमी यकजहती को फ़रोग देना है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपाल, अहमदपुर सियाल। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर आज मुल्क के दीगर शहरों की तरह रहीम बिहार खान में भी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मियाँ इरशाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है आज पूरे पाकिस्तान में जो है यौम तशक्कुर जो है वो मनाया जा रहा है और मुल्क के लिए और आर्मी के लिए जो है वो दुआएं भी की जा रही हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं और इनसे जानिए क्या कहना चाहेंगे। अपनी अफवाज पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, खुसूसन आवाम को
خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر، مسالک اور مذاہب سے بالا تر ہو کر یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور انہوں نے جس انداز کے اندر یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ جی بالکل، میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موقع پر ہم افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس پوری دنیا میں پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ جس طرح سے ہندوستان کو ہم نے جواب دیا ہے، جوابی کارروائی کی ہے، جس طرح سے ہم نے انہیں بتایا ہے کہ ہماری فوج کتنی ماہر فوج ہے، الحمدللہ یہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ واقعی ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ الحمدللہ پوری قوم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، ہماری حکومت، ہماری عوام اور ہماری فوج، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، اور الحمدللہ ہر محاذ پہ ہم اسی طرح ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، جو ہے ملک کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے۔ یوم اظہار تشکر کے موقع پر جہانیہ میں فیڈریشن آف رجسٹرڈ اسکولز جہانیہ کے زیر اہتمام پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر اسکول پرنسپل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جانتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا۔ آج ہم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم تشکر منا رہے ہیں، اور میں سپہ سالار حافظ عاصم منیر جنرل صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی اثا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کی مربوط پالیسی اور حکمت عملی اپنائی اور انڈیا کو جو ہے نہ کوئی چنے چبوائے۔ تمام پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی طرف سے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو تمام پرائیویٹ اسکول جو ہے نا ہمارے پاک فوج، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پیٹرول پمپ ڈیلر ایسوسی ایشن تحصیل شاہکوٹ کے زیر اہتمام پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے آج یوم تشکر منایا گیا اور پریس کانفرنس کی گئی۔ یوم تشکر کے موقع پر کیک کاٹا گیا اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ آخر میں ملک پاکستان اور پاک فوج کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ بھی الحمدللہ پاکستان نے اور افواج پاکستان کے سپہ سالار نے اس کا جو جواب 10 مئی کو نماز فجر کے بعد عین سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے نماز فجر پڑھ کے دعا کر کے جو اس کا جواب دیا، پھر وہ پاکستان نہیں، وہ شاہکوٹ نہیں، پوری دنیا نے دیکھا بھی الحمدللہ سپہ سالار کی اس قائدانہ صلاحیتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جس جرأت اور بہادری کے ساتھ انڈیا کے اوپر تابڑتوڑ حملے کیے، تو پھر انڈیا کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور عالمی طاقتوں سے اس نے مدد حاصل کی، اور وہ ویلا کیا کہ ہمیں بچایا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔